اولیاء کو درمیانی سمجھتے ہیں اور اپنے اولیاء کو خدا سے بات کرنے کے لیے اپنے میڈیمز سمجھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ صوفیزم جو ہے ببلیکل تعلیم جو ہے بائبل مقدس کی تعلیم جو ہے اس کو ڈیبنک کرتا ہے یا ریپلیس کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں خداوند یسوع مسیح کی شفاعت کو جو ہے وہ کینسل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ناممکن ہے. Hello, Khushamdeed, and welcome to the Art of Ministry podcast. My name is Zirik Hussain, and I am joined here by my co-host and partner in ministry, Pastor Harris. اس پوڈکاسٹ میں ہم خدمت کی مختلف قسموں کے بارے میں بات چیت کریں گے. ہم مل کر خدا کے لوگوں کی خدمت اور بہتر طور پر کیسے کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں. اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. تھینک یو فار جوائننگ us today. Today there's a very interesting conversation that we're about to have, and I'm really excited about this. How do you feel? میں بالکل بڑا خوش محسوس کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ میرے من میں یہ بات تھی کہ آج ہم اس ایک خاص ٹاپک کو جیسے شیئر کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ بابرکت رہے گا ہمارے لیے بھی اور ہمارے آڈینس کے لیے بھی. زبردست. اچھا، آپ نے مجھ سے بات کی تھی ہم جب پلان کر رہے تھے تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک ایسا ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اور وہ ہے صوفیزم، جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے یہ آئیڈیا آیا، کہ what motivated you to talk about this today in this podcast? صوفیزم کے بارے میں دلچسپی کی بات ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ ٹاپک اسائن کیا گیا ہے اصل میں کہ صوفیزم پہ، یعنی جو ہے انہوں نے خاص طور پہ مجھے کہا کہ پادری صاحب مسیحی صوفیزم پر بات کرنی ہے. میں تھوڑا سا چاہوں گیا کہ مسیحی صوفیزم پر بات کیسے ہوتی ہے یا کس طرح سے مسیحی صوفیزم کون سا عنوان بنے گا. بہرحال انہوں نے مجھے کہا جس طرح پالوس رسول بات کرتے ہیں نا فعل صوفی کے بارے میں، تو آپ بھی ذرا مسیحی صوفیزم پر بات کریں. میں نے Okay, that's interesting. So پالوس رسول فعل صوفی کے بارے میں بات کرتے ہیں. What's that story about? فعل صوفی کا پادری صاحب نے جو ورڈ پڑھا، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے نا کوئی تمہیں انسانی فلسفی سے نہ گمراہ کر دے، تو وہ ہاں تو وہ فلسفی کو فعل صوفی پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ صوفیزم پر بات ہوتی ہے، تو پادری صاحب آپ نے جو ہے وہ مسیحی صوفیزم پر بات کرنی ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج مسیحی صوفیزم پر ہی بات کریں آپ کے ساتھ. Awesome. That's very innocent. لیکن I think یہ بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں. تو listeners, you've heard this is what we're going to talk about today. اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے. And I'd like to prime the conversation with this. If you're listening to us for the first time, this is a podcast about ministry. اور اس پوڈکاسٹ کے اندر ہم خدمت اور اس کی مختلف قسموں کے بارے میں بات کریں. ہم دونوں کافی سال سے اکٹھے خدمت کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے، اور آپ مجھ سے متفق کریں گے، اور I believe کہ بائبل مقدس جو ہے خدا کی ذات کے بارے میں ہمیں سب سے کلیئر اور شفاف تصویر دکھاتی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے بالکل بچا فرمایا ہے. جی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. It's the most clearest picture about who God is and his character. لیکن اس کے بعد having said that، ہمیں ایسی دوسری دھندلی تصویریں بھی نظر آتی ہیں دنیا میں جو کہ چاہے اتنی کلیئر نہ ہوں، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس میں سے کہیں نہ کہیں آپ کو انجیل کی جھلک ضرور آئے گی. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بلکہ میں نے شروع میں تو مجھے وہ تھوڑا سا ایک ہنسا دینے والی بات ہی لگی کہ ان کی معصومیت کی وجہ سے کہ انہوں نے اس لفظ کو صحیح نہیں پڑھا، لیکن اب یہ چونکا دینے والی بات بھی بنی. اور میں سمجھتا ہوں پھر میں نے اس کو سنجیدگی سے سمجھنا بھی شروع کیا کہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور تاکہ اگر ایک خادم اس بات کو صحیح سے طرح نہیں سمجھ رہا تو عام لوگوں کے بارے میں جو ہے اس مضمون کو سمجھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے.
क्रिश्चियन सूफीज़्म, बिकॉज़ आज हम बात करें कि क्या चीज़ है क्रिश्चियन सूफीज़्म? क्या ये एक अलहदा मज़हब है? क्या ये एक बिदअत है? और अगर है या नहीं है तो ये क्या है? और अगर हम ये जान लेंगे तो उससे आप क्या समझते हैं हमारे लिसनर्स को या वो लोग जो खिदमत में हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा सुनने से आज? मैं समझता हूँ आज के जो एपिसोड है इसको सुनने के वसीले से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में हर एक लिसनर को एक वाज़े और शिफाफ पैगाम ज़रूर मिलता है कि बग़ैर यीशु मसीह के कोई बात नहीं है। अब सूफ़ीज़्म की जब हम बात करते हैं या जिस तरह भी मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आपकी भी रिसर्च है सूफ़ीज़्म पर, तो थोड़ा सा आप भी बताइए इससे पहले कि हम आगे चलें कि मतलब वो है क्या। तो उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें यीशु मसीह की ज़रूरत और उनकी अहमियत जो है और वाज़े तौर पर या वाज़े तरीके से समझ में आएगी आज के इस एपिसोड के वसीले से, मैं समझता हूँ। So let's go ahead. I think we should dive right in. So आज हमारे इस इमेजिनरी टेबल के ऊपर जो तस्वीर पड़ी है वो सूफीज़्म है और हम जायज़ा करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें हमें खुदा की सच्चाई नज़र आती है या नहीं आती है. So let's start with asking the question first of all, सूफीज़्म है क्या? क्या है ये? Is this a new religion? तो जब मैंने रिसर्च की तो सूफीज़्म के अंदर it has kind of become a kind of new age amalgamism of spiritual practices. तो ये बज़ाते खुद एक मज़हब तो नहीं है लेकिन ये बहुत सारे मज़हबों में से ली गई चीज़ों को मिलाकर एक कह सकते हैं कि एक मिक्स वेजिटेबल सी है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की. यानी आप ये कह रहे हैं कि सूफीज़्म का ताल्लुक सिर्फ मज़हब इस्लाम से नहीं है, ये इस्लाम से भी पहले का कोई मज़हब है या उससे भी That's exactly what I'm saying. जी इसकी जो जड़ें हैं जो आप भी कह रहे हैं, सो इसकी रूट्स जो हैं वो हमें मिलती हैं अर्ली इस्लाम में एंड व्हेन इस्लाम बिगैन. लेकिन सूफीज़्म के अंदर जो आइडियोलॉजी है, जो ईमान, जो बिलीफ्स हैं, वो ग्रीक फ़िलॉसफी से, हिंदू फ़िलॉसफी से और कहीं न कहीं क्रिश्चियन थियोलॉजी से और ये इन सारी सोर्सेस से लेकर जो है वो बिलीव्स जो है सूफीज़्म के हमें मिलते हैं. देखिए ज़रा, जैसे अभी बात चूँकि ज़्यादा था जब हम सूफीज़्म की बात करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि इस्लामी यकीन के मुताबिक ये इल्म बातनियत है या इल्म बातन है या रूहानियत है या दरवेशी या रियाजत है. मैं समझता हूँ एक शायर है जो हमारे शायर मशरक़ कहलाते हैं, उनका ये एक शायर अगर मैं सही तरह से पढ़ सकूँ तो खुद ही में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है. तो मतलब यहाँ जो वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि आप खुद ही में डूब के पाओ सुरागे ज़िंदगी. तो मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि यहाँ किसी ना किसी तरह से अक्स ये है कि अपने इल्म बातन से, अपने बातनियत से, अपनी रूहानियत से आपने सुरागे ज़िंदगी पाना है, जबकि बाइबल मुक़द्दस हमें टोटली डिफरेंट पिक्चर जो है वो हमारे सामने रखती है. इसी मेरे ज़हन में बात आई कि आप अगर एक उर्दू बोलने वाले मसीही हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे आप माने या ना माने, सूफीज़्म ने आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर किया, चाहे अपनी पोएटिक ट्रेडिशन से, अपनी शेर व शायरी से, बिकॉज सूफीज़्म आपको हर जगह नज़र आ रहा है. क्यों, जैसे आपने कहा, इट्स अ स्पिरिचुअल मिस्टिकल आर्ट फॉर्म, इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड. तो गानों के अंदर, राइटिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं आपने ज़रूर, अगर आप उर्दू बोलने वाले हैं तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सूफीज़्म को आपने देखा है. जी, उसकी एक वजह भी ये ना कि क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं, कल्चरली भी बहुत सारी चीज़ों के इफ़ेक्ट्स हैं हम पर, और हमने ये देख रखा है कि अगर हम हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं या उर्दू बोलने वाले किसी भी मुल्क में है तो ऑफ कोर्स वो जो माशरती इम्पैक्ट है ना वो भी हमारे ज़हनों पर है. और फिर हम जिस एटमॉस्फेयर में पले पड़े हैं, यानी उसका अक्स जो है वो हमारी ज़िंदगियों में मुसलसल जो है वो है, जिसकी वजह से हम अपने सामने रियाजत करते हुए लोगों को देखते हैं, दरवेशी को देखते हैं, जो मतलब है इसका. तो यानी ये जो मिस्टिकल
मूवमेंट है वो किसी ना किसी तरह बराह रास्त या बिला वास्ता या बिल वास्ता मतलब ये है कि हमें ज़रूर इम्पैक्ट हम पर अपने डालती है, उसके ज़रूर उससे हम मुतासर होते हैं. मतलब हालांकि ये एक जो है वो अपने शख्सी तजर्बे से इसके अंदर जो है वो बंदा इलाही मोहब्बत को या इलाही इल्म को हासिल करने की कोशिश करता है कि अपने अंदर से वो अपने बातन में वो खुदा को ढूंढने की जो है वो कोशिश करता है. तो शायद इसी वजह एंड आई थिंक ये बात अपील करती है काफ़ी लोगों को, और उसकी वजह ये भी है कि बज़ाहिर सूफीज़म एक बड़ा ही लिबरल और ओपन माइंडेड कल्चर कह लें या रिलीजन लगता है. और उसकी वजह ये बिकॉज सूफियों जब ये सूफी निज़ाम शुरू हुआ आगाज़ में अर्ली रूट्स इन द 13th सेंचुरी, तो ईमान सबसे बड़ा ईमान ये था सूफीज़ का, दे बिलीव दैट ऑल फेथ्स आर इक्वल. सारे ईमान जो हैं तमाम मज़ाहिब जो हैं वो इक्वल हैं. और सबसे बड़ा जो ईमान जो है वो ये है एक सूफी शख्स का कि अगर आप किसी एक मज़हब को किसी दूसरे मज़हब पर ज़्यादा तरजीह देते हैं तो आप डिनाई कर रहे हैं खुदा की एग्जिस्टेंस को उस दूसरे मज़हब में. कि आपको क्या पता है कि खुदा वहाँ भी है, उनमें भी है, खुदा उनसे भी बात करता है. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक ये पॉलिसी है कि वी आर ओपन टू एवरीबडी. ऑल्दो जब हम गौर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सूफीज़म के अपने ऐसे बड़े ही अकीदे हैं जो कि विच आर वेरी कह सकते हैं कि they show Sufism कि वो they're very individual to Sufism. अब देखिए आपने मुझे ये बात जो आपने की है कि मतलब हर मज़हब के अंदर वो खुदा को देखते हैं, तो मतलब ये मैं ये तो नहीं कह रहा कि हर मज़हब जो है वो सच्चा है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हर मज़हब के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं. लेकिन अगर हर मज़हब के अंदर ही आप सच्चाई देखते हैं तो फिर इसका मतलब है कलाम पाक में बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जो कुछ ईमान से नहीं है वो गुनाह है. अगर आपका इधर भी ईमान है, उधर भी ईमान है, इधर भी ईमान है, तो फिर आप कौन से ईमान पे खड़े हैं? ये एक मतलब लम्हा फिक्रिया है उस शख्स के लिए कि वो ये सोचे. जिस तरह आप उसकी तारीख पर बात कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं कि उसकी जड़ें बड़ी मजबूत है और बड़े मज़ाहिब के साथ जुड़ी हुई है. गो आज एक ख़ास मज़हब के साथ उसका लिंक जोड़ा जाता है इस्लाम के साथ, लेकिन इसका मतलब है कि उसकी जड़ें मज़ाहिब के अंदर से हैं, पुराना मज़हब है मतलब ये. या और जैसे आप कह रहे हैं मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से, क्योंकि बाइबल क्लेम कर रही है नए अहदनामा में that there is one faith. पौलुस रसूल कहते हैं कि एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, ठीक है, एक ही निजात दहिंदा. तो अगर बाइबल क्लेम कर रही है कि एक ही ईमान है, तो आई थिंक ये जो क्लेम जो सूफीज़म कर रहा है इट स्टैंड्स अगेंस्ट व्हाट द बाइबल इज ट्राइंग टू क्लेम. जी, बहुत बहुत खूबसूरत आपने आयत कोट की है कि एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, और रसूल उसी आयत में कहता है कि एक ही दरमियानी है. जबकि सूफीज़म के अंदर जो है वो ये है कि वो अपने औलिया को दरमियानी समझते हैं और अपने औलिया को खुदा से बात करने के लिए अपने मीडियम्स समझते हैं. तो मतलब ये है कि ये सूफीज़म जो है बिब्लिकल तालीम जो है, बाइबल मुक़द्दस की तालीम जो है उसको डिबंक करता है या रिप्लेस करता है. दूसरे लफ्ज़ों में खुदावंद यीशु मसीह की शिफायत को जो है वो कैंसिल करने की कोशिश करता है, जो कि नामुमकिन है. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं जब रिसर्च कर रहा था इस बात पे तो मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल जो है वो फाइंड आउट किया. इट्स बाय अ मैन नेम्ड ली स्मिथ, और वो ट्रैवल करते हैं इजिप्ट के अंदर और जाकर इस खास सूफीज़म और सूफ़ी जो निज़ाम चल रहा है इजिप्ट के अंदर उसके बारे में काफ़ी बताते हैं. तो बहुत सारी बातें जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैंने वहाँ से ली है, तो ये मेरी सोर्स है. और जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने उसके अंदर बताई कि पिछले 20 सालों से इजिप्ट के अंदर सूफीज़म ने बहुत स्ट्रेंथ पकड़ी है. वाह. और
बताते हैं कि जो निज़ाम है, जैसे कि आपने कहा औलिया जो निज़ाम है, उसके बारे में बताते हुए कि सिमिलैरिटीज़ की अब हम अगर बात करें कि जो क्रिश्चियनिटी और सूफ़ीज़्म के बीच में, जैसे आपने कहा कि हाँ, ये द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सूफ़ीज़्म इस्लाम का है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ली स्मिथ जैसे लोग देख रहे हैं सूफ़ीज़्म को और कहते हैं कि ओह! देखो, देखो, ये चीज़ क्रिश्चियनिटी के साथ मिलती-जुलती है। तो जब मैं उसका आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें से एक चीज़ जो उसने देखी कि जो उसने कहा, क्लेम किया कि ये सिमिलैरिटी है सूफ़ीज़्म और क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो ये बात थी कि सूफ़ीज़्म के अंदर ये अकीदा है कि उनका ईमान है ऐसे लोगों पर जिन्हें वो वली कहते हैं या औलिया कहते हैं, जिन्हें वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके पास एक स्पिरिचुअल एक्सेस है हाँ खुदा के साथ या अल्लाह के साथ, और उनका ईमान ये है कि अगर आप इनके थ्रू दुआएं करवाएं या इनसे दुआएं करें तो ये आपकी दुआओं को खुदा की ज़ात तक ज़्यादा जल्दी पहुंचा सकते हैं। जबकि अगर आप मेन स्ट्रीम इस्लाम में देखें तो ये ईमान नहीं है। फंडामेंटलिस्ट जो इस्लाम के अंदर हैं वो तो अपने नबी से भी दुआ करते नहीं हैं, बल्कि उसके लिए दुआ की जाती है, राइट? तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आता है। सो ली स्मिथ जैसे लोग क्लेम करते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये बिलीफ पाया जाता है इंटरसेशनल प्रेयर का, जी और आप कहते हैं आप कि सूफीज़्म ने वहाँ से ली ये चीज़। जी जैसे बिल्कुल आप बात कर रहे हैं कि इंटरसेशनल प्रेयर जो है वो कॉन्सेप्ट तो इस तरह से जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो ये तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, कलाम में भी लिखा था कि हम बरकत पाएं। लेकिन जिस तरह सेंट्स से दुआ करना या मिसाल के तौर पे मज़ारों कब्रों पे जाके दुआ करना, जैसे हमारे जो है वो कैथलिक भाइयों के अंदर है कि मतलब सेंट्स से दुआ करना, जो लोग मर गए हैं उनसे दुआ करना, उनका नाम लेके या उनकी पिक्चर्स के सामने जाकर। तो मतलब यह है कि किसी हद तक तो फिर वो उससे बात मिलती ही है ना कि यीशु मसीह को रिप्लेस करने वाली बात है ना सेंट्स के वसीले से, चाहे वो कोई वली है चाहे वो कोई सेंट है। जब हम उसको जगह दे देते हैं यीशु मसीह की, तो फिर मसीह की शफायत की ज़रूरत तो फील ना हुई ना उस शख्स को जो किसी वली से या किसी सेंट के पास जाके दुआ करवाता है। तो आपने जैसे कहा कि उसकी जड़ें मज़ाहिब के अंदर हैं, तो बिल्कुल ये ऐसा ही है फिर। आई कम्प्लीटली एग्री। देखें, अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं, सूफीज़्म का आगाज़ होता है 13वीं सदी में। अब 13वीं सदी में मसीही मज़हब की शक्ल क्या थी? प्रोटेस्टेंट मूवमेंट अभी उसका अपने अरूज पर नहीं थी, जी ठीक है? और उस वक्त जो आप देखते हैं जो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी, व्हाट डज इट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक कैथलिकिज्म। और कैथलिकिज्म के बिलीव्स जो थे उन्हें क्रिश्चियन बिलीव्स उस वक्त के कहा जाता था। अब जैसे आपने पॉइंट आउट किया है कि कैथलिक चर्च के अंदर सेंट्स से दुआ करना और सेंट्स से दुआ करना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि वो दुआएं लेकर खुदा तक पहुंचाएं, ये ईमान रखा जाता है। अब प्रोटेस्टेंट फेथ के अंदर देयर इज अ टोटली डिफरेंट फेथ। तो प्रोटेस्टेंट फेथ के अंदर बहुत सारे चर्चेस बिलीव करते हैं इंटरसेशनल प्रेयर पे, बट दे बिलीव दैट द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो खुदा और इंसान के बीच में जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, जो जरिया है, वो एक ही है, उसके सिवा नहीं है जी। और वो है यीशु मसीह। ही इज द ओनली वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। ये वो बात है जो प्रोटेस्टेंट्स क्लेम कर रहे हैं, राइट? जी आप ये भी बिल्कुल बिजा फरमा रहे हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरह आज प्रोटेस्टेंटिज्म के अंदर भी पास्टर्स को भी कई दफ़ा वही मकाम दिया जाता है, और लोग ये सोचते हैं कि पादरी साहब दुआ करेंगे ना तो मेरी दुआ कबूल होगी, शायद मैं इतना गुनाहगार हूँ कि मेरे अकेले की नहीं दुआ कबूल होनी, तो मैं पादरी साहब से करवाता हूँ। तो लोग खुद दुआ करने की बजाय हर एक दुआ के लिए पास्टर साहब पर डिपेंड करते हैं। तो किसी तरह उस बात का मैं समझता हूँ अक्स या उस बात का साया प्रोटेस्टेंट के अंदर भी है। वजह यह है कि इंसान तो इंसान ही है ना, मतलब उसके अंदर वो जड़ें अभी भी मजबूत है उसकी किसी ना किसी तरह से। तो मतलब मैं समझता हूँ कि दुश्मन ये चाहता है कि लोग यीशु मसीह की जो ज़रूरत है उसको महसूस ना करें, बिल्कुल उन्हें यीशु की ज़रूरत महसूस ना हो। And I think that's where sometimes Sufism is getting it wrong.
देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्योंकि देखिए हम इस इमेजिनरी टेबल के ऊपर इस तस्वीर को देख रहे हैं, सो we're looking at the good things and then we're looking at oh like we're making sense, हम कोशिश कर रहे हैं, जायज़ा कर रहे हैं, तो हाँ रिजेंबल करता है। सो वी क्रिश्चियनिटी को, सूफीज़्म, बहुत सारी चीज़ें रिजेंबलेंस में आ रही हैं, लेकिन व्हेन वी टेक अ क्लोजर लुक, जब हम अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से और जूम करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो हमें रियलाइज़ हो रहा है that no, there are some things कि जब हम उसे बाइबल मुक़द्दस की शिफाफ रोशनी के अंदर उसको रख कर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या सफ़ेद है और क्या काला है। बिकॉज आई डोंट थिंक बाइबल अपने बिलीव्स पर कोई ग्रे एरिया हमें देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अ majority of what the Bible claims and the doctrines of the Bible are it's very black and white sometimes about जी at least the portions जहाँ पे खुदावन के लॉ की या शरीयत की बात की जा रही है, इट्स वेरी ब्लैक एंड वाइट, ये करो और ये ना करो, यू नो। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जैसे मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि सूफीज़्म के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं। मतलब ये है कि परहेजगारी पर बात की जाती है। मतलब ये है कि बड़ा ज़रूरी है कि खुदा का कलाम भी कहता है कि ईमानदार शख्स को परहेजगार होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन परहेजगारी की बिना पर हम निजात क्लेम तो नहीं कर सकते परहेजगारी की बिना पर। लेकिन परहेजगारी एक अच्छी सिफ्त है सूफीज़्म में, बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह एक और भी बड़ी अच्छी बात है सूफीज़्म में कि वो जब जहाद की बात करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमें बैरूनी जहाद की नहीं, हमें अंदरूनी जहाद की ज़रूरत है। कि मतलब हमें अपने खिलाफ जो है वो जहाद करना है, अपनी उस दुनियावी सोच के और अपनी उस जिस्मानी या कार्नल नेचर के खिलाफ जहाद करना है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कलाम भी हमें यही सिखाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस की जब हम बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमें परहेजगारी इख्तियार करनी है और हमें जो है अपने आप पर काबू रखना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो इस बात का नेमल बदल नहीं हो सकती कि खुदावंद यीशु मसीह को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि हमें निजात जो है उसके वसीले मिली है जो यीशु मसीह ने किया है, ना कि जो हम करते हैं। Okay. So we look at Sufism और हम देखते हैं कि वो इस इस इनर कंट्रोवर्सी की बात करें जो कि आपके अंदर ही सही और गलत के बीच में है, एंड देन वी ब्रेक इट डाउन एंड देन वी टॉक अबाउट इट द गुड थिंग्स आर। और लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स की बात करता चलूँ तो आपने जो बात की जिहाद की, जी अब जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर जब उन्होंने जाके देखा तो इजिप्ट के अंदर पिछले 20 सालों से सूफीज़्म और सूफी ग्रुप्स जो हैं उन्होंने बहुत तरक्की पाई है। और उसके बाद हुआ ये है कि चूँकि उनका ये स्टैंस है कि आपका जिहाद आपके अपने साथ ही है और आपको एक फोकस है अपने ऊपर, राइट? एक अंदर इनर साइकोलॉजिकल स्टैंस है, एंड इनवर्ड साइकोलॉजिकल स्टैंस कि मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ, मैं किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। ओके, दोज आर ऑल गुड थिंग्स, बट लुक एट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हुआ ये कि रिसर्च के अंदर ये पता चला है दैट इजिप्ट के अंदर पिछले 20 सालों में लिटरेसी के, पॉवर्टी के और अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हुए हैं। वाह। और उसकी वजह कहीं ना कहीं सूफीज़्म के और सूफीज़ के ये बिलीव्स और अकीदे भी हैं। कैसे? इस तरह से कि वो लोग जो सूफीज़ जिन्होंने ये ईमान रखा है कि नहीं, हमें हमारा फोकस सिर्फ हमारे अपने आप पर होना चाहिए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इन बिलीव्स को इस्तेमाल किया है अपने सेल्फिश बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि क्या है कि एक शख्स जिसका फोकस सिर्फ अपने ऊपर ही है तो गरीबों की मदद, दूसरे लोगों की मदद और दूसरों के ऊपर फोकस उसका फिर नहीं है। सो जिसकी वजह से अब आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कि इस सेल्फिश स्टैंड्स की वजह से कहीं ना कहीं जो है उनकी पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी इंक्रीज हुई, बिकॉज नोबडी इज टेकिंग केयर और लविंग द सोसाइटी आउट देयर।
वाह! मैं आपकी इस बात से जो बात समझ रहा हूँ, वो यही समझ रहा हूँ कि मतलब सेल्फ सेंटर्डनेस जो है वो ये चीज़ क्रिएट करती है फिर, कि बंदा खुद पर या फोकस करता है। और जबकि क्या खूबसूरत है यीशु मसीह की तालीम कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम अपनी रूहानी तरक्की कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी ही रूहानी तरक्की कर रहे हैं और चर्च की रसूल कहता है रूहानी तरक्की नहीं कर रहे, तो बेहतर क्या है कि हम चर्च की तरक्की करें। तो पौलुस रसूल भी ये फरमाते हैं कि हमें चर्च की तरक्की करनी है, दूसरे की तरक्की करनी है, बजाय इसके कि हम अपनी रूहानी तरक्की ही करते जाएं। तो यानी हमें क्राइस्ट सेंटर्ड होना है, जो कि क्राइस्ट के अंदर उसके लोग हैं, बजाय इसके कि हम सेल्फ सेंटर्ड हों। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात आपने इससे की है जो मेरी समझ में आई है, कि मतलब ये है कि ज़ाती रियाजत या ज़ाती परहेजगारी या अपनी ही आरफाना हालत जो है उससे बंदा अपने ही इल्म बातन से मतलब खुदा तक रसाई तो शायद सोचता है कर ले, मगर मैं समझता हूँ ये नामुमकिन है, क्योंकि बंदा तो सेल्फ सेंटर्ड है। और जहाँ खुद गर्जी आ गई वहाँ पे फिर रूहानी तरक्की कैसी हुई, क्योंकि बंदा तो सेल्फ सेंटर्ड है। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि ज़ाती रूहानी तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप अपने नेबर्स अपनी कम्युनिटी अपने चर्च को तरक करें, रद्द करें? क्या मैं यही सुन रहा हूँ? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ तक आप अपनी रूहानी तरक्की की बात करते हैं, आप दूसरों की रूहानी तरक्की के बारे में सोचिए। मिसाल के तौर पे जैसे आज हम अपनी कलीसिया के अंदर देखें, तो शायद एक शख्स जो है वो अपनी ही रियाजत और रोज़ों पर जो है वो बड़ा फोकस करता है, और शायद उसे कलीसिया की तरक्की की ज़रूरत नहीं है, और वो प्रेयर नाइट्स लोग करते हैं अपनी रूहानी तरक्की के लिए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये है कि दूसरों को भी साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी है, यानी हमें दूसरों का भी ख्याल रखना मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी है। जिस तरह भी आपने कहा कि गो ये बड़ा अच्छा है, लेकिन उस सेल्फ सेंटर्डनेस ने गुर्बत को रूज दिया है। मतलब ये है कि बेरोजगारी को परवान चढ़ाया है। क्यों? कि हर बंदा अपनी जात के बारे सोचता है, चाहे वो रूहानी फवायद के लिए हो या जिस्मानी फवायद के लिए। तो एक लिहाज से ये एक खतरनाक भी बात हो गई सोसाइटी के अंदर। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जब भी लिसनर्स, जब भी आप कंफ्यूज हों कि अगर आप कोई किसी भी चीज़ का ऐसे जायज़ा कर रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि क्या इसमें कितनी इस चीज़ में, इस बात में, इस आइडिया में कितनी सच्चाई है, वी ऑलवेज गो बैक टू द आइडियल, ऑलवेज गो बैक टू द आइडियल, बैक टू द बाइबल। ये हमारी ज़िंदगी का थीम होना चाहिए, बैक टू द बाइबल, गो टू द बाइबल। व्हाट्स आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? इट्स द बाइबल। और बाइबल की उस अर्ली कलीसिया के अंदर अगर आप गौर करें, उस अर्ली चर्च के अंदर, और फिर उसको आप कंपेयर करें आज के हमारे चर्च के अंदर, तो एक तो जो सबसे बड़ा आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो ये, दैट द अर्ली चर्च was community based. The church का मतलब, जो लफ्ज़ है ग्रीक का ecclesia, उसका मतलब ही लोग हैं, community है। The church was community. चर्च बिल्डिंग का नाम नहीं है, चर्च पास्टर का नाम नहीं है, चर्च वर्शिपर्स का नाम नहीं है, चर्च किसी इवेंट का नाम नहीं है। चर्च इज कम्युनिटी, इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिटी। और सूफीज़म के अंदर जिस तरह से ये जो बिलीव्स हैं, सूफीज़म के जो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स हैं उस बिलीफ सिस्टम के जो आपको सिखाता है कि निजात आपके कामों के वसीले से है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये तो इनकरेज करता है ना कि निजात आपके कामों के वसीले से, या आप अपनी रियाजत से जो है वो खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जबकि यसाया 64वें बाब की आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं और हमारी बदकरदारी आंधी की मानद हमको उड़ा ले जाती है। हमारी औकात क्या है कि हम कोशिश करके अपनी रियाजतों से खुदा तक रसाई हासिल करें, नामुमकिन है। गंदे कपड़ों की It reminds me कि जब आदम और हवा ने in the beginning, जब उन्होंने गुनाह किया,
Genesis chapter 2 and 3, तो गुनाह करने के ठीक बाद उन्होंने अपने आप को उन पत्तों से ढांकने की कोशिश की, क्योंकि वो रियलाइज़ करते हैं कि ओह, हम नंगे हैं, हम जी। अनकवर्ड हैं, हम and they felt guilty, they felt ashamed, और अपनी shame को कवर करने के लिए जी। they covered themselves with leaves, fig leaves. तो कभी हम जब फिग लीव्स से मेटाफोरिकली जब हम अपनी फिग लीव्स से कवर करने की अपने आप को कोशिश करते हैं, तो ना सिर्फ उससे हम साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो इफ़ेक्ट, जैसे कि आदम की चॉइसेस हवा को जी। इफ़ेक्ट कर रही थी, आज हमारी चॉइसेस हमारी कलीसिया, हमारी फैमिली वाह! को इफ़ेक्ट करती हैं। Awesome. और जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इजिप्ट के अंदर, आज कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और हमारा चर्च भी उसी तरह से वीक हो रहा है बिकॉज जी। ऑफ आवर सेल्फिश नेचर्स। वाह, बहुत क्योंकि खूबसूरत। हर शख्स अपनी निजात को पाने के लिए अपने ही नेक कामों पे फोकस किए हुए है, ताकि वो कहीं ना कहीं उसे 5 स्टार जो है ना वो मिल जाए, एज इफ सल्वेशन इज अ कंपटीशन। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मतलब ये है कि इस बात के साथ मतलब मुत्तफिक हूँ जो आपने भी फरमाई है, लेकिन मैं इस सूफीज़म के अंदर जो चंद बातें अच्छी हैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन बात यहाँ पर जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मतलब सूफीज़म ये है कि अपनी सेल्फ एफर्ट से, अपनी सेल्फ विजडम की बिना पर, अपनी रियाजत से, अपनी परहेजगारी से खुदा तक अपने शख्सी तजर्बे के वसीले पहुँचने की एक नामुमकिन या एक नाकाम कोशिश है। इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप इस एपिसोड का बकिया हिस्सा सुनना चाहते हैं तो अगला पार्ट देखना मत भूलिए।